Today we are discuss Lewis octet rule. The tendency of atoms to achieve 8 electrons in their outermost shell is known as Lewis octet rule. Student, जब तक हम अब तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? Every atom has tendency to achieve 8 electrons in their outermost shell, and this rule is known as octet rule, given by scientist Lewis. So octet rule is the basis of electronic theory of valency. किसके बेस के ऊपर है? Electronic theory of valency. It is suggested that valency electrons themselves are responsible for chemical combination. So those valence electrons, the valence electrons are responsible for chemical combination, either in ionic bond or in covalent bond. So the valency electrons in atoms are shown in terms of Lewis dot formulae. Student, ये आपके dots हैं. So these are shown by valence electrons. ये क्या शो कर रहे हैं आपके? Valence electrons, and given by Lewis dot formulae. So to write Lewis formulae for an element, we write down its symbol. Student, symbol ये आपका atomic symbol है. For example X surrounded by number of dots. ये क्या student आपके? Dots और crosses equal to the number of valence electrons. So जितने आपके valence electrons होंगे, that is shown by these dots. ठीक है students, and X is a atom. So dot formula also used to represent atoms covalently bonded in a molecule. So dot formula में क्या बता रहा है कि atoms covalently bonded in a molecule, कि कोई atom covalently bonded molecule में है कि नहीं है और कितने bond बना रहा है. So paired and unpaired valency electrons are also indicated. So इस dot formula में हमें और क्या क्या बताना है कि paired electrons मीन जो fully filled orbitals हैं वो कितने हैं और unpaired electrons कितने हैं. कौन से? valence electrons. कितने आपके valence electrons paired हैं और कितने आपके कितने आपके valence electrons unpaired हैं. मीन्स कितने valence electrons आपके paired हैं, मीन्स आपके orbitals fully filled हैं, और कितने valence electrons आपके unpaired हैं, मतलब कितने आपके orbitals half filled हैं. These are represented by dots. ठीक है स्टूडेंट. So for example group 1. ठीक है स्टूडेंट. So group 1 का क्या है? How many electrons in valence shell? 1. So that is represented by dot 1. So group 2, how many electrons in valence shell? 2 electrons. So this is one dot, this is a second dot. Group 13, how many valence electrons? That is start p block element. यहाँ पे क्या था? Group 1 and 2 are s block elements, and group 13 is a p block element. So for example आपका 1s2, 2s2, 2p1. So 2s2, 2p1. How many electrons? 3 electrons. Group 13. For example configuration क्या आ गई आपकी? 1s2, 2s2, 2p1. Group 13. ठीक है. So group 13 means 10 plus number of s electrons plus number of p electrons. Group 13 आ गया. So p block element आ गया. How many electrons in valence shell? 2 plus 1, 3, and these 3 represented by these 3 dots. So group 14, 2s2, 2p2. How many valence electrons? 4 valence electrons. Now group 15. Group 15 students, for example आपका नाइट्रोजन. ठीक है स्टूडेंट, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2, 2s2, 2p3, 2s2. स्टूडेंट ये क्या आपका? फुल्ली फिल्ड. ये आपका फुल्ली फिल्ड है. तो ये फुल्ली फिल्ड ये वाला पेयर आपका शो कर रहा है. दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस पेयर्ड डॉट्स आर शोन एंड इंडिकेट द ऑर्बिटल्स इज फुल्ली फिल्ड. सो ये आपका जो 2 डॉट्स हैं स्टूडेंट, पेयर डॉट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके? 2s2. और ये आपके जो 3 डॉट्स हैं ये अनपेयर्ड हैं, सिंगल डॉट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके? 2p3. बिकॉज 2p3 मीन्स 2px1, 2py1, 2pz1. सो ये आपके 2px1, 2py1, 2pz1, और ये क्या आपका? 2s2. सो ग्रुप 16 फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एलिमेंट क्या होगा? 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. ग्रुप 17 हैलोजेंस 2s2, 2p5. सो 2s2, 2p5. दिस इज 2s2 पेयर्ड आपका 2px2, 2py2 and 2pz1. How many electrons? Unpaired. In halogens only 1. So ये आपका 1 unpaired है, और बाकी ये आपके क्या है? सारे के सारे pairs. So हमें यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिल रही है? Paired and unpaired valence electrons कितने हैं? तो हमें किससे पता चला? ये लुईस सिंबल से. ठीक है स्टूडेंट, गिवन बाय लुईस, and this rule is known as octet rule.
तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं फेलर ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हम पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ने वाले हैं? फेलर ऑफ ऑक्टेट रूल। सो फेलर ऑफ ऑक्टेट रूल, सबसे पहले कौन से एलिमेंट्स में ये ऑक्टेट रूल फेल हो जाएगा? जहां पे आपके ऑक्टेट के इनकम्प्लीट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल मींस बॉन्ड बनाने के बाद भी मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी है। तो वहां पे जो ऑक्टेट रूल आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। सो इन विच ऑक्टेट ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट कंप्लीट। स्टूडेंट हमने ऑक्टेट किसका देखना? फॉर एग्जांपल यहाँ पे BF3 है। सो BF3, बोरॉन इज ए सेंट्रल एटम एंड फ्लोरीन्स आर सराउंडेड एटम्स। सो हमने किसका ऑक्टेट देखना होता है? सेंट्रल एटम का। किसका देखना होता है? सेंट्रल एटम का। सो इन विच ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, किसका स्टूडेंट? सेंट्रल एटम का। सो BF3 में बोरोन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, जबकि स्टेबल मॉलिक्यूल बन चुका हुआ है। स्टेबल मॉलिक्यूल बनने के बाद भी बोरोन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। अभी देखते हैं। तो देयर आर सेवरल स्टेबल मॉलिक्यूल्स, कह रहा है काफी सारे ऐसे स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं इन विच ऑक्टेट रूल इज वायलेटेड। मींस वहां पे ऑक्टेट रूल आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। मींस एटम्स इन दीज मॉलिक्यूल्स हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल ईदर शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट और मोर देन ऑक्टेट। स्टूडेंट यहां तो ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन्स कम है या ऑक्टेट से भी क्या है? ज्यादा है। और ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स स्टेबल फॉर्म में बन चुके हुए हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स बनने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वैलेंस शेल का, या ऑक्टेट बनने के बाद भी वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, इन उन केसेस में आपका ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यहां पे हम सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये वाला। शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट, ये मोर देन ऑक्टेट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट। ठीक है स्टूडेंट। सो फॉर एग्जांपल कह रहे हैं BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन एटम फॉर्म्स 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 3 फ्लोरीन एटम्स, दैट इज इट अटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल। स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं, एक कोवेलेंट बॉन्ड में नंबर ऑफ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2। सो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे इसका मतलब बोरॉन के पास क्या आ गई? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पे ऑक्टेट रूल क्या हो गया? फेल हो गया, जबकि मॉलिक्यूल बन चुका हुआ है। एक बोरॉन, बोरॉन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2 2p1। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बोरॉन? 3। 1 2 3। These stars indicates, these 3 stars indicate there are 3 unpaired electrons. Unpaired electrons कैसे हुआ? So this is a same shell. Same shell में स्टूडेंट क्या हो सकती है? एक्साइटेशन। 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम 2s2 2p, दिस इज 2px1, दिस इज 2py1, और स्टूडेंट यहाँ पे 2pz गया आपका एम्प्टी। सो हाउ मेनी अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स? 3। इसका मतलब यहाँ पे कितने फ्लोरीन लगेंगे? 3 फ्लोरीन। कितने लगेंगे? 3 फ्लोरीन। सो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन शेयर्ड विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरोन। So 3 fluorine atoms shared their unpaired electrons with 3 unpaired electrons of single boron atom. बन गए स्टूडेंट आपके 3 bonds. So there are 3 unpaired electrons in boron atom and there is one. This is paired 2s2 2px2 2py2 और ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट? आपका 2pz1. So यहाँ पे कितने फ्लोरीन आने चाहिए? अब 3 फ्लोरीन, क्योंकि यहां पे कितने अनपेयर्ड आपके बोरॉन के पास? 3। तो ये आपके 3 अनपेयर्ड फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट। अब ये एक अनपेयर्ड बोरॉन का, दूसरा अनपेयर्ड बोरॉन का और तीसरा अनपेयर्ड बोरॉन का, इसने क्या किया? ये तीनों अनपेयर्ड बोरॉन के इन 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन के, उनके साथ क्या बना लिए? कोवलेंट बॉन्ड्स, शेयरिंग कर ली। ये एक बॉन्ड बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। और 2pz स्टूडेंट बोरॉन के पास क्या था? हम अभी देख चुके हैं, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz क्या है? 0. सो देर आर 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इन बोरॉन एटम 1 2 and 3 and fluorine has 1 half filled orbital 2pz1. So that's why these half-filled electrons of boron shared with 3 fluorine atoms. ये आपके 3 बॉन्ड बन गए स्टूडेंट, BF3 बन गया और 2pz क्या आ गया? एम्प्टी।
इट मीन्स ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, जबकि मॉलिक्यूल आपका स्टेबल मॉलिक्यूल बन चुका हुआ BF3। सो यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या हो गया, फेल। सो पहला केस क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स में ऑक्टेट रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मॉलिक्यूल बन चुका हुआ स्टेबल, उसके बावजूद स्टूडेंट आपका ऑर्बिटल क्या है अभी, एम्प्टी, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, because each bond shared 2 electrons, means one pair of electrons. So 6 electrons are involved in the bond formation in BF3. So there is 2pz empty, octet rule is fail. So this is the failure of octet rule. This is the first case. This is the first case. So second case is, so क्या कह रहा है, फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल, इट कैनॉट एक्सप्लेन। एक तो स्टूडेंट आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, जिनके मॉलिक्यूल्स में क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब स्टूडेंट अगर बॉन्ड बनेंगे, फॉर एग्जांपल बॉन्ड बन रहा है, तो स्टूडेंट की फॉर एग्जांपल आपका मीथेन ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बने स्टूडेंट आपके, 8, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो BF3 लो आप, चाहे यहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं भी है, फिर भी आप देख लो BF3 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो जब भी बॉन्ड बनेंगे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व क्या होंगे, ऑलवेज इवन, ऑड नंबर तो होंगे नहीं, क्योंकि जब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने का मतलब है कितनी शेयरिंग हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की, मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स की। अब जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे, मैं कहता हूँ 3 बॉन्ड बन गए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्ड बन गए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड बने तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सुन, कभी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इन्वॉल्व होंगे नहीं, तो वहां पे आपका ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कहां पे, जहां पे आपके मॉलिक्यूल में क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, वहां पे आपका ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, BF3 फॉर एग्जांपल, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, वहां भी आपका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल बेरिलियम, क्या बेरिलियम की, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम क्या आ गया आपका, 1s2 2s2 2p, कंप्लीट एम्प्टी स्टूडेंट। अब क्या होगा, एक्साइटेशन 2s1 2px1। अब स्टूडेंट 2py भी आपका खाली है और 2pz भी आपका खाली है, और क्या आपका BeCl2, एक क्लोरीन यहाँ पे लगेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे लगेगा, बिकॉज क्लोरीन आल्सो हैव, कितने हैं उसके पास, 3pz1 में, एक अनपेयर्ड है, बाकी स्टूडेंट क्या है, सारे के सारे फुली फिल्ड। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक अनपेयर्ड था, तो ये क्या बन गया आपका, एक कोवलेंट बॉन्ड, और ये क्या बन गया, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, और ये 2py1 और 2pz1 2pz0 के हो गए खाली, तो ये भी क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। और जबकि बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट। सो बेरिलियम क्लोराइड एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट होने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या हो गया आपका, फेल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और थर्ड वन क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑक्टेट से भी ज्यादा, 8 से भी ज्यादा जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां भी ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वो हम अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में भी आपका ऑक्टेट रूल फेल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में भी फेल है, और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में भी आपका फेल है। फॉर एग्जांपल आपका NO, ये आपका स्टेबल मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, आपका NO, ठीक है स्टूडेंट। अब NO इज ए स्टेबल, सो नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने ऑक्सीजन के पास 8, 7 + 8 कितने आ गए 15 इलेक्ट्रॉन्स। और स्टूडेंट एक मॉलिक्यूल में कभी 15 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं, मॉलिक्यूल में ऑलवेज कितने होंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने होंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल हम CH4 देख लेते हैं, कार्बन के पास कितने हैं 6, और हाइड्रोजन के पास 4 एक है, एक 1 × 4 कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने आ गए 10। सो जो आपके जिनके ऑक्टेट कंप्लीट है स्टूडेंट, उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, वो क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्टेट रूल और कहां पे फेल हो गया, जहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल क्या है, ऑड नंबर, वहां भी ऑक्टेट रूल क्या है आपका, फेल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में, और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में भी ऑक्टेट रूल क्या है, फेल। ये आपके एग्जाम में आ जाता है कि ऑक्टेट रूल कहां पे फेल होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने आपको ये एक छोटी सी एग्जांपल्स दे दी हैं, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये आपने 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर देना है। मैं ये आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज डिस्कस कर चुका हूँ, और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ऑलवेज जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कितने होते हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर कभी नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि जब ऑड नंबर होंगे
तो मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ और अगर इवन नंबर होंगे तो मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल हम NO2 देख लेते हैं। अब नाइट्रोजन के पास कितने हैं 7, ऑक्सीजन के पास 8, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 7 23 आपका। तो ये भी क्या है ऑड नंबर, तो यहाँ भी अब ऑक्टेट क्या होगा फेल होगा। सो ठीक है स्टूडेंट, दीज आर द एग्जांपल्स। अब इलेक्ट्रॉन स्पीशीज देखते हैं हम। So expansion of octet means electron species, the compound whose central atom, for example यहाँ पे PCl5 है, PCl5 में central atom कौन सा आपका phosphorus, central atom have more than 8 electrons। अब जिनमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा in its outermost shell show the expansion of octet। इसका मतलब ऑक्टेट क्या कर गया है एक्सपैंड कर रहा है। और स्टूडेंट ये ज़्यादातर किन में होता है थर्ड पीरियड में, जिनके पास क्या हो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हो, क्या हो वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि थर्ड पीरियड में 3s भी है 3p भी है और स्टूडेंट आपका 3d भी है। अगर 3d आपका एम्प्टी अवेलेबल है तो मीन्स ये आपका ऑक्टेट क्या हो गया एक्सपैंड कर गया, इलेक्ट्रॉन जो 8 से ज़्यादा अवेलेबल होंगे बॉन्ड बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपका PCl5 मॉलिक्यूल है, PCl5 है, हम पहले PCl5 ही देख लेते हैं। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, ये आपका तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए स्टूडेंट 2, 2 4, 2 6, 2 8 और कितने हो गए 10। तो कितने आ गए 8 से ज़्यादा 8 से ज़्यादा, तो मतलब यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या हो गया फेल हो गया। सो PCl5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करता है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं आपके 5 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट से ज़्यादा हो गया तो यहाँ भी ऑक्टेट रूल क्या हो गया आपका फेल हो गया। सो फास्फोरस एटम हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। फास्फोरस क्या है आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट फास्फोरस की, नियॉन तक आप लिख लोगे 3s2, 3px1, 3py1, 3pz1 और 3d क्या स्टूडेंट आपका कंप्लीटली एम्प्टी और 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइड फ्रॉम 3s2 एंड देन 3p to 3d। 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1, 3d1। How many unpaired electrons? 5 unpaired electrons and chlorine। स्टूडेंट क्लोरीन के पास क्या है एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल 3p5, ठीक है स्टूडेंट, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे क्या हैं आपके पेयर्ड, बाकी क्या हैं आपके पेयर्ड, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका 2s, ये आपका 3s2, ये आपका 3px2, ये आपका 3py2 और ये क्या आपका 3pz। अब एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, सबका एक एक जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा शेयर होगा किसके साथ हाफ फील्ड अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस। कितने बॉन्ड बने 1 2 3 4 और क्या बन गए 5। सो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, मींस टोटल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हो गए 10, 8 से ज़्यादा, तो ऑक्टेट आपका क्या हो गया एक्सपैंड हो गया। जबकि PCl5 क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। और ये किस केसेस में है जहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, वो वाले एटम्स जहाँ पे आपके एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे वहाँ भी आपका ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। क्योंकि क्या होगी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम s to p एंड देन p to d। तो अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी बढ़ गई। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई तो मतलब आपके कोवलेंट बॉन्ड्स भी क्या होंगे बढ़ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल विद अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मेक्स कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। सो phosphorus atom have 5 electrons in its valence shell. It forms 5 single covalent bonds with 5 chlorine atoms, utilizing all the valency electrons। सारे valency electrons ने क्या कर लिया यूटिलाइज कर लिए and there were attained 10 electrons in outermost shell। So octet क्या हो गया expand कर गया। ये आपके स्टूडेंट आपका फास्फोरस है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने अभी देख लिए, कितने हैं आपके 2 3 4 और 5। ये पांचों इसने क्या करने हैं एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कहाँ पे एक्साइट हो गया था ये वाला, ये पेयर था, ये आपका है 3s2, ये क्या आपका 3px1, ये क्या आपका 3py1 और ये क्या आपका 3pz1। और ये वाला जो स्टूडेंट जो आपका पेयर था ये किस में यूज होगा 3d में। तो 3d में यूज होगा तो फास्ट होगा कितने कितने आ जाएंगे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है स्टूडेंट 5 बॉन्ड बन गए किसके साथ 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स के साथ। और क्या बन गया आपका PCl5 और ऑक्टेट क्या हो गया एक्सपैंड और ऑक्टेट रूल क्या हो गया फेल।
और कहाँ पे हुआ, जहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, ठीक है स्टूडेंट, वहाँ पे भी आपका ऑक्टेट रूल फेल हो गया। अदर एग्जांपल SF6। अब स्टूडेंट सल्फर है, सल्फर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सल्फर नियॉन तक आप ऐसे लिख लोगे 3s2 3px2 3py1 3pz1 और 3d क्या स्टूडेंट आपका एम्प्टी। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 3s से और एक इलेक्ट्रॉन 3p से एक्साइट होके कहाँ पे जाएगा, 3d में। ये आपका एक ऑर्बिटल आ गया xy और ये आपका दूसरा ऑर्बिटल आ गया yz प्लेन। अब कितने हाफ फील्ड आ गए स्टूडेंट आपके पास, 1 2 3 4 5 6। अब सल्फर क्या बना रहा है, और इसके पास अभी भी क्या स्टूडेंट एम्प्टी है, बाकी ऑर्बिटल्स क्या हैं, टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं डी में 5, और अभी 3 ऑर्बिटल्स अभी पड़े हुए हैं, लेकिन कितने हाफ फील्ड आ गए हमारे पास 5। और FS6 फ्लोरीन के पास क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, बाकी क्या है सारे आपके पेयर्ड, तो ये क्या बनेगा, एक बॉन्ड 3s1 का एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड और फ्लोरीन का हाफ फील्ड क्या करेगा, शेयर करके क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। सो हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स, 2 3 4 5 6, इट मीन 6 बॉन्ड्स, इट मीन 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कितने आ गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे कितने आ रहे इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में 12 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स ऑक्टेट की क्या होगी एक्सपेंशन, और ऑक्टेट रूल क्या हो गया फेल। और जबकि आपका SF6 एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मीन्स ऑक्टेट क्या हो गया फेल हो गया। मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल आपका NO है 7 + 8 कितने आ गए 15, यहाँ भी ऑक्टेट फेल हो गया। NO2 कभी भी आपके मॉलिक्यूल्स में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, ठीक है स्टूडेंट। आपके नाइट्रोजन +2 × 8 यहाँ भी कितने आ गए 23, क्या आ गया ऑड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल ClO2 क्लोरीन में कितने स्टूडेंट आपके 17 +2 × 8 कितने आ गए 17 + 8 = 16 33, यहाँ भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जबकि ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ भी ऑक्टेट रूल क्या है आपका फेल। सो ऑक्टेट रूल कहाँ पे फेल हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स में, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट में, मींस 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। और ये आपका क्वेश्चन स्टूडेंट 1 या 2 नंबर का आएगा, आपने सारा एक्सप्लेन नहीं करना, सिंपल आपने ये स्टेप्स एक्सप्लेन कर देने। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दे देनी है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट की एग्जांपल दे देनी है, और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दे देनी है, और एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना कि ये कैसे फेल हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कह रहा है कि कोवलेंट स्ट्रक्चर्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो है। कह रहा है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन ओनली फ्यू एटम्स आर कॉल्ड सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। अब कह रहा है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में सिर्फ क्या है फ्यू एटम्स हैं। सिंपल मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज द फोर्सेस दैट होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर are weak and are easily broken and are therefore liquids or gases at room temperature. For example आपका वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। मैं आपको कल भी बता चुका था। फॉर एग्जांपल एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इनमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वान डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और वीक वान डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विद इन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण, क्योंकि हर मॉलिक्यूल है उनके पास कोई ना कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, आपस में क्या हो रही है अट्रैक्शन हो रही है, एंड दैट इज अ वीक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, सिर्फ क्या हो रहा है मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है एक वीक अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग हो चुके हुए, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर चुके हुए हैं, इनके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि एक्स्ट्रा बॉन्ड किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएं। लेकिन हर मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यूक्लियस है, तो दैट्स वाई आपस में क्या हो रहे हैं ये वीक फोर्सेस के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो दैट्स वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और अनलाइक स्टूडेंट आयनिक कंपाउंड्स में क्या था, वहां पे क्या बन रहे थे लैटिसेस, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आपका CO2 है स्टूडेंट, आपने सॉलिड CO2 भी सुना होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कारण भी क्या है वान डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है स्टूडेंट, वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस। सो वो अगर सॉलिड्स एग्जिस्ट करेंगे तो कौन से करेंगे सॉफ्ट सॉलिड्स,
जैसे आपका सॉलिड CO2, ये क्या आपका सॉफ्ट सॉलिड। सो वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये क्या है वीक, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं लो। सो द कोवलेंट बॉन्ड विद इन दीज मोलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग। स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, अब जो कोवलेंट बॉन्ड है वो तो स्ट्रॉन्ग है, ये वाले कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं, मैं ये नहीं कह रहा वीक हैं, ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्या होगा अट्रैक्ट होगा, तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट वो क्या है, वो वीक है। वो क्या है, वो वीक है। द कोवलेंट बॉन्ड्स विद इन दीज मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग बट द बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इनको क्या बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, आर वीक एंड आर इजी टू ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपका ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इनमें जो ये बॉन्ड है ये क्या है कोवलेंट बॉन्ड है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। अब स्टूडेंट ये आपका एक मॉलिक्यूल आ गया और ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, ये डॉटेड है, जो डॉटेड लाइन में शो हो रही है ये क्या स्टूडेंट आपकी, ये जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये आपका मॉलिक्यूल है और ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में क्या है, ये आपकी जो डॉटेड लाइन है ये क्या है वीक फोर्सेस। ये क्या है वीक फोर्सेस, वीक बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल, जिनको क्या बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, और वो क्या है वीक है, इसीलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है लो। ये लैटिसेस नहीं बना पाते अनलाइक आयनिक कंपाउंड्स। सो इन जनरल लार्जर द मॉलिक्यूल हायर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट जितना ये मॉलिक्यूल आपका लार्ज होता जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको वैन डर वाल्स की स्टूडेंट, अब हम डीप में जाने शुरू हो गए हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन है स्टूडेंट ये आपने नोट करनी है, लार्जर द मॉलिक्यूल। स्टूडेंट जितना मॉलिक्यूल का साइज आपका लार्जर होगा, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, जितना कोई मॉलिक्यूल है, जरूरी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे डायमंड है, ठीक है स्टूडेंट। अब जितना मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होता जाएगा उतनी वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएंगी, ज्यादा होती जाएंगी, बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स मींस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस। अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। सो पहला स्टेप, लार्जर द मॉलिक्यूलर साइज, और मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग। लार्जर द मॉलिक्यूलर साइज उतनी ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा, और उतना उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हम कंपैरिजन करने में यूज करेंगे कि किनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है। अरेंज करेंगे, रेंज मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आपको क्वेश्चन आएगा तब आपने ये दिमाग में रखना है कि जितना मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होगा उतनी वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और उतना ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा कोवलेंट कंपाउंड्स में। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब स्टूडेंट किसकी बात आ गई, मॉलिक्यूलर सॉलिड की। कह रहा फ्यू सब्सटेंसेस दैट कंटेन सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कह रहा बहुत से कम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, और उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है स्टूडेंट, सो आयोडीन इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। स्टूडेंट जो आपका आयोडीन है, डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन लगाने से पहले आपका वो जर्म्स को साफ करता है, किससे साफ करता है, आयोडीन से, और वो क्या है सॉलिड है, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वेरी लो। जैसे ही वो आप उसको बोतल को ओपन करता है जिसमें आयोडीन है, वो क्या हो जाती है, वोलेटाइल। जब आपको वो आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो आपको क्या फील होता है, ठंडा ठंडा। तो मतलब क्या होता है कि आयोडीन वहां से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी से हीट लेके क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। लेकिन जब तक वो बोतल के अंदर बंद है वो कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। सो आयोडीन इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। So two iodine atoms form a single covalent bond to become an iodine molecule. Student iodine आपका क्या, हेलोजन have only one unpaired electron, so that's why कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। कह रहा है आयोडीन में I2 में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, बन गया स्टूडेंट। लेकिन द सॉलिड इज फॉर्म, कहता है सॉलिड कैसे बन गया फिर, द सॉलिड इज फॉर्म बिकॉज मिलियंस ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टू क्रिएट ए 3D मॉलिक्यूलर लैटिस। लैटिस स्टूडेंट की बात आ गई स्टूडेंट अब, और ये लैटिस क्या है, लेकिन क्या है, सॉफ्ट लैटिस। कौन सा है, सॉफ्ट लैटिस, जहां पे कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही स्टूडेंट,
मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की अट्रैक्शन नहीं हो रही, क्या हो रही है, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, वैन डर वाल्स फोर्सेज। कह रहा है जब मिलियंस ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेज, तब जो आपका आयोडीन मॉलिक्यूल बनेगा स्टूडेंट, वो क्या बनेगा, मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट। सो आपस में क्या है, ये जो आपके डॉटेड लाइंस है ध्यान से देखिए, ये क्या है, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वीक है, लेकिन जब मिलियंस ऑफ ऐसी अट्रैक्शंस जुड़ जाएं तो स्टूडेंट वो आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड। है वीक, एक आयोडीन और दूसरे आयोडीन के बीच में जो ये अट्रैक्शन है वो क्या स्टूडेंट आपकी, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स के बीच में है, आयंस के बीच में नहीं है, अनलाइक आयनिक कंपाउंड्स, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ऑलरेडी मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज कर चुका हुआ है बॉन्ड बनाने में, अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है ताकि वो आयंस बने या ताकि वो कोई एक्स्ट्रा किसी और के साथ बॉन्ड बना सके। सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन I2 मॉलिक्यूल एंड आल्सो इन अनदर I2 मॉलिक्यूल, बट इनमें कौन सी फोर्स है, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। जब ये मिलियंस ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आपस में जुड़ जाएंगी तो स्टूडेंट जो आपका आयोडीन मॉलिक्यूल है वो क्या बन जाएगा, आपका सॉलिड। क्या बन जाएगा, सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट, सॉफ्ट सॉलिड। सो कह रहा है व्हाट प्रॉपर्टीज वुड यू एक्सपेक्ट, मैंने अभी आपको कहा है आयोडीन क्या आपका, वोलेटाइल। क्यों वोलेटाइल है, क्योंकि जो सॉलिड तो है लेकिन कौन सा है, उनमें जो अट्रैक्शन है वो कौन सी है, वीक फोर्सेस, जिसके कारण से ये इजीली क्या हो जाता है स्टूडेंट, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई आयोडीन इज ए वोलेटाइल सब्सटेंस। कह रहा है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स सच एज आयोडीन आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि जो आयोडीन और आयोडीन के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो सॉलिड है, वो क्या है, वीक, जिसके कारण से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो। ये क्या जनरली सॉफ्ट एंड ब्रिटल, दे आर शटर व्हेन हिट, ये भी क्या है, सॉफ्ट। कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन ने फॉर एग्जांपल क्या कर लिए हैं, यूटिलाइज कर लिए हैं बॉन्ड बनाने में, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा व्हाई डू मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैव दीज प्रॉपर्टीज, कह रहा ये प्रॉपर्टीज क्यों हैं, द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कैन बी ब्रोकन बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट अगर जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, इजिली कुछ हम क्या देंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो वो मोलिकुलर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, जिसके कारण से दिस मीन्स दैट जो मोलिकुलर सॉलिड्स हैं वो क्या है, सॉफ्ट एंड ब्रिटल। सो दैट्स व्हाई उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो, दे मेल्ट एंड बॉयल एट लो टेम्परेचर्स। क्यों, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक, एंड दैट कैन बी ब्रोकन बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। So that's why iodine is a volatile substance. So molecular solids are also unable to conduct electricity because there are no free electrons or ions to carry a charge. क्योंकि molecular solids के पास कोई free electrons भी नहीं है और कोई ions भी नहीं है ताकि वो चार्ज कैरी कर सकें और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें। So next topic आएगा स्टूडेंट आपका what is electronegativity. This will be discussed in next lecture. Thanks.